Jai Hind, my dear students, how are you? I hope that you all are doing very fine, very perfect. So, students, we were reading the test of divisibility, and right now we have gone through the test of divisibility of two numbers, which are 2 and 3. मीन्स अभी तक हम लोगों ने दो नंबर्स की यानी नंबर 2 की और नंबर 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रखी है, जान रखी है कि कैसे होता है प्रोसीजर. ठीक है. अब जो नेक्स्ट है आपके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का, वो स्टूडेंट्स ये है. ठीक है. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 कि 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या कोई प्रोसीजर ऐसा है कि विदाउट डूइंग द कंप्लीट डिवीजन हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये नंबर 9 से डिवाइड होगा. बच्चों, डजंट इट साउंड इंटरेस्टिंग कि हम लोग बिना डिवाइड किए, विदाउट टेकिंग लेबर, विदाउट टेकिंग एनी वर्क, हार्ड वर्क, we are able to get the answer whether the given number is divisible by 9 or not. So yes, of course there is a way. What is that way? In order to understand this way, I would like to revise the rule of divisibility of 3. Okay, so the rule of divisibility of 3 was, whenever a number is given for you to check whether this number is divisible by 3 or not, what you do, you just add the digits of the given number. Yes, is it or not? You just add the digits of the given number and then you check whether the final sum, okay, whether the final sum is divisible by 3 or not. यही तो रूल था कि जो भी कोई गिवन नंबर होता है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद ये देखते हैं कि क्या जो सम आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो ये कह देंगे कि हाँ गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. अगर ये रूल आपको समझ में आ चुका है तो बच्चों एकदम डिक्टो सेम रूल है फॉर 9. इन केस ऑफ 9 द रूल इज ऑलमोस्ट सेम, देयर इज नो डिफरेंस. So here in case of 9, a given number is divisible by 9 only when the sum of its digit is divisible by 9. Clear? Let's check, let's try to apply this concept in the given questions with the given numbers 27981. So here when we write it, the given number 27,981. So our first duty is to add its digits, and adding these digits 2 plus 7 plus 9 plus 8 plus 11, we got a total of 27. So बच्चों, with your knowledge and intelligence, just answer me that is 27 divisible by 9 or not? Your answer will be yes, of course. Yes, of course. Then this is correct. So can you understand, like, can you imagine how easy it has become? That you just add the digits and you get the answer whether the given number is divisible by 9 or not. But so it's very, very, very important concept. Okay. On the other hand, if you had not known this, you would have gone for the complete division process like this. So most obvious, this process is the lengthier one and a bit tedious. Now let's check the second part. 8,69,517, or you can simply say 869517. First duty is to
add the digits, which is 8 plus 6 plus 9 plus 5 plus 1 plus 7, and its addition, the final sum becomes 36. बन गया ना 36। अब अपनी इंटेलिजेंस से, अपने नॉलेज से बताओ कि क्या 36 9 से डिवाइड होता है? 9 4 ज़ा 36, ऑफ कोर्स डिवाइड होता है, तो ये भी डिविजिबल हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं। The given number is 937546. 937546. We added the digits. The total sum comes to be 34. And क्या ये 34 9 से डिवाइड होता है बच्चों? 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 होता है, और 9 4 ज़ा 36 हो जाता है। बीच में 34 कहीं आता है और जो वो डिवाइड होता है नहीं 9 से, तो इसलिए आंसर क्या लिखा गया? विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। इसका मतलब 937546 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। कितना ईजी कि बिना डिवाइड किए ही आप पता कर लिए कि डिविजिबल बाई 9 है या नहीं है। ठीक है, सेम प्रोसीजर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में है। क्या है प्रोसीजर? द गिवन नंबर इज़ 336899। ऐड किया हमने, कितना है? 38। तो क्या 38 जो है 9 से डिवाइड होगा? कहोगे सर डिवाइड तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा प्रॉपर डिवाइड। अब डिवाइड नहीं होगा तो आंसर लिख देंगे कि गिवन नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब खुद सोचो कि इतने बड़े नंबर को 9 से डिवाइड करना, उसके कंपैरिजन में केवल 38 को 9 से डिवाइड करना, वो भी अब टेबल के बेसिस पे पता कर ले रहे हो, कितना बड़ा डिफरेंस है, सच ए ह्यूज डिफरेंस। ठीक है ना? आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 51y3 इज डिविजिबल बाय 9 एंड ऑल्सो फाइंड ईच नंबर। तो पहले तो ये देखो कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो कि अगर हम यहाँ पे रखें y की जगह पे तो नंबर डिवाइड किससे होता रहे? 9 से डिवाइड होता रहे। नंबर किससे डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। और y की वैल्यूज़ तो बतानी ही बतानी, उसके साथ साथ हमें वो नंबर्स भी बताने हैं कि वो नंबर कौन कौन से होंगे जो कि 9 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर ना? आओ देखते हैं। सो प्रोसीजर अपना अभी भी सेम है। गिवन नंबर जो भी लिखा है, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू ऐड इट्स डिजिट। जैसे ही बच्चों हमने डिजिट्स को ऐड किया तो क्या पता चला कि ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? वो वैल्यू आ रही 9 प्लस वाई। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ये चाहते हैं कि 9 प्लस वाई 9 से डिवाइड हो जाए तो मैंने बताया था ना कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने बताया था ना कि सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। तो बच्चों अगर हमने y की जगह पे 0 रखा तो 9 प्लस 0 बाई 9 बिकम्स 9 बाई 9, और ये ऑफ कोर्स डिविजिबल है 9। ठीक है, अच्छा अगर इसी की जगह पे बच्चों हमने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 10। डिविजिबल है? नहीं है। अगर हमने यहाँ पे 2 रखा क्या बन जाएगा? 11। डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पे 3 रखा, तो 9 3 12। जस्ट अ मिनट, 9 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में 12 आ जाएगा। कि 12 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। करते करते जब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? 9 पे पहुँचेंगे फिर से, तो 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, और ये 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि y की जो 2 वैल्यूज़ हम एडमिजिबल है जो ले सकते हैं वो क्या क्या हैं? एक तो 0, दूसरा 9। आई रिपीट अगेन कि जो 2 वैल्यूज़ है जो हम लोग ले सकते हैं वो कौन कौन सी है? एक तो ये 0 है और दूसरा वो 9 है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तो y की जो वैल्यूज़ है वो क्या है? 0 और 9। अब तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर मतलब 51y3 था क्वेश्चन में, तो y की जगह हम लोग क्या क्या भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं? वो 0 और 9। 5103
एंड 5193। क्लियर हो गया ना? चलो अच्छी बात है। सो इस तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और हो गया। कुछ रिमार्क है, आइए पढ़ लेते हैं क्या रिमार्क है। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, बट अ नंबर डिविजिबल बाय 3 में नॉट बी डिविजिबल बाय 9। यानी ये याद रखना कि कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये कंपलसरी है, ठीक। लेकिन अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और वो 9 से भी डिवाइड होगा, और वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। यही कंडीशन थी। और नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 कि अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो क्या हम बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों ये सबसे इजी है, इससे इजी कुछ है ही नहीं, इससे इजी 10 ही है बस खाली, ठीक है। रूल देख लो क्या है। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। यानी कोई भी नंबर हो, खूब बड़ा सा नंबर मान लो लिखा हो 2157365541, अब इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये पता करना है, केवल यही पता करना है कि डिविजिबल है या नहीं है, तो पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करके पता नहीं करने की ज़रूरत है। कैसे पता करोगे? बस आपकी यूनिट डिजिट देख लो। यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है बच्चों बताओ? यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है ना। तो अगर यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 है, अगर यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और डिजिट है तो गिवन नंबर 5 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, और देखते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि 67930 डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। लेकिन अब जो नीचे जो सेट है इनमें से कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? 278 513 684 341 482 507, इन सब के यूनिट डिजिट पे देखो, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है या 7 है, बट क्या किसी में भी 0 या 5 है? और अगर नहीं है तो ये नंबर 5 से डिवाइड, अगर 0 5 है तब तो होगा, और अगर नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 समझ में आ गया। और डिविजिबिलिटी बाय 10 देख लेते हैं। रूल देखो उसका। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। कोई गिवन नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसका यूनिट डिजिट की बात हो रही है। दोनों ही केस में 5 और 10 किसकी बात हुई थी? यूनिट डिजिट की बात हुई थी। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, 2 की डिविजिबिलिटी में भी क्या चेक किया जा रहा था? यूनिट डिजिट। और डिजिट्स क्या क्या होने वाले थे यूनिट डिजिट पे? 0 2 4 6 8। ये किसका केस है? 2 का केस है। फिलहाल अभी हम लोग 10 पे हैं तो 10 की बात करते हैं। तो 10 की बात में क्या है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। जैसे 90 120 230 350 470, ये सारे के सारे 10 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई नंबर लिखा 2 1 3 4 5 6 7 1, ये 4, तो क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? आप कहोगे सर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा ज़रा ये बताओ इस टॉपिक से थोड़ा हट के कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड करने के लिए तो हम लोगों को यूनिट डिजिट चेक करना होता है, और यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। क्या यहाँ पे इस सेट में से कोई भी चीज़ यहाँ के यूनिट डिजिट में है या नहीं है? आप कहोगे सर यस 4 है। तो और अगर 4 है तो ये जो गिवन नंबर है ये वाला, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या है, रूल देखते हैं। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि गिवन नंबर 4 से डिवाइड होगा केवल तभी जब उस पूरे नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा हो। उस पूरे नंबर का
लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे मैं आपको एक नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा सा नंबर है। अब ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए प्रॉपर नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट इसका क्या है बच्चों 5 6 यानी 56। तो क्या ये 56 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देख लो आपके सामने है डिवीजन, डिवाइड हो गया ना। तो इतने नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लेना है 4 के केस में, ठीक है, कि डिवाइड 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? और देखते हैं गिवन नंबर है 3 5 6 9 2, तो लास्ट 2 डिजिट इस 92 का क्या है 92, और 92 इज डिविजिबल बाई 4, और क्योंकि 92 डिविजिबल बाई 4 है इसलिए गिवन नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगा। इसी तरीके से 4 1 3 2 8 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है इसका 2 8 है, या 28 ऑब्वियसली बात है 4 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये गिवन नंबर 4 1 3 2 8 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो क्या है बच्चों, हियर द गिवन नंबर इज 10874। यहाँ पे गिवन नंबर क्या है 10874 है। तो क्या गिवन नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है 74 वो 4 से डिवाइड होता है? तो हो गया सर नहीं डिवाइड होता है, नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है। बोलो डिविजिबल है क्या बच्चों? नहीं ना, डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब ये 74 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर 10874 भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। बताओ है ना मैजिक, है ना मैजिक कि नहीं है? चलो नेक्स्ट देखो 154326, 154326। अब अगर कोई नंबर ये चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, जिसके एंड में 26 है, तो बच्चों आप खुद बताओ कि 26 क्या 4 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे सर 26 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर 26 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये जो गिवन नंबर है 154326 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी क्या है बच्चों? डिविजिबिलिटी किसकी किसकी बची है अभी? 8 की, 7 की और 11 की। बस हाँ, बस 8 7 और 11 की डिविजिबिलिटी है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो बच्चों मेरे साथ, मैं भी फिनिश कर दे रहा हूँ एक बार में ही। ठीक है, divisibility of 8. A given number is divisible by 8 only when the number found by its last 3 digit is 8. Divisible by 8. Divisible by 8. ठीक है ना। ये बिल्कुल 4 जैसा है। 4 में क्या करते थे? 4 में हम लोग देखते थे लास्ट 2 डिजिट। ठीक, 8 के केस में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, नंबर क्या है 49104। पहला नंबर क्या है 49104 ही तो है। तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है बच्चों? इसका लास्ट 3 डिजिट है 104। तो अब पॉइंट ये है कि 104 क्या 8 से डिवाइड होता है? तो 8 से बिल्कुल डिवाइड होता है। रिमाइंडर कितना आया 24, 8 3 24। और अगर आपको टेबल याद होगी तो बिल्कुल मालूम होगा कि 13 8 कितना होता है 104 होता है। तो ये बिल्कुल 8 से डिवाइड होता है। सो अगर 104 इज डिविजिबल बाई 8, इट मीन्स दैट 49104 is also divisible by 8. Clear? This given number 570312 is divisible by 8 or not, ये चेक करने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। क्या है 312। क्या 312 8 से डिवाइड होता है? अब अगर आपको आता है, अगर आपको मालूम है, ओरली चेक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मालूम है तो आप 312 को 8 से डिवाइड करके देख लो। हम कहते हैं भाई इस इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है ना कि हम लोग केवल 312 को डिवाइड करके देख लें। 8 से डिवाइड किए तो 8 3 24, रिमाइंडर आया 7, यहाँ से 2 से ऊपर एज इट इज़ डाउन लाइन में आ गया, एंड 8 9
72 और ये प्रॉपर का प्रॉपर डिवाइड हो गया, प्रॉपर डिवाइड हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो गिवन नंबर है ना बच्चों 57032 57312 ये भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा। केवल 312 को डिवाइड करके पता कर लिए। ठीक, आओ नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 685218। लास्ट डिजिट 218 है। हमने जब डिवाइड किया 218 को, मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ तुमको, ठीक है ना। 218 को जब हमने डिवाइड किया देखो 8 2 ज़ा 16 चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 5 8 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर आया 2। क्या अब ये आगे डिवीजन प्रोसेस हो सकता है? अगर हम डेसिमल में लेके ना जाएं तो बिना डेसिमल में गए क्या हम लोग यहाँ तक कह सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है? गिवन नंबर 218, आपको कहे सर नहीं 218 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर 218 डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों तो फॉर श्योर जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है 685218, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे गिवन नंबर है 73914, लास्ट 3 डिजिट 514, डिवाइड किए डिविजिबल 8 से तो डिविजिबल नहीं निकला, और अगर डिविजिबल नहीं निकला तो इसी वजह से ये नंबर भी डिवाइड प्रॉपर नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8। कहते हैं कि ऐसा नंबर बताओ जो कि 4 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन 8 से डिवाइड ना हो, 4 से डिवाइड हो जाए लेकिन 8 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो देखो एक ऐसा एग्जाम्पल इसने पिक किया 36, क्योंकि 36 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलो अ नंबर रिमार्क देख लेते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इज श्योरली डिविजिबल बाई 4, but a number divisible by 4 is not necessarily divisible by 8। ठीक है, वही नियम था जैसे कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो कन्फर्म है कि वो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? कोई कन्फर्मिटी नहीं है। ठीक है, चलो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। फॉर टेस्टिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 7 वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या फॉलोइंग स्टेप्स होता है? कुछ नहीं होता है, यूनिट डिजिट के नंबर को डबल करना रहता है। डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। डबल करने के बाद यूनिट डिजिट रिमूव कर दो और जो वैल्यू आई डबल करने के बाद उसको डिक्रीज कर दो। ठीक, और यही प्रोसेस करते जाएंगे और डिवाइड करके चेक करते जाएंगे कि नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसमें तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, है ना। हाँ नहीं देखो 672 छोटा नंबर तो है, करते हैं इसको, ठीक है ना। और देखो नंबर क्या है 672 है। इसको मैं तुम्हें देखो थोड़ा प्लेन जगह पे बताता हूँ, थोड़ा सा प्लेन स्क्रीन पे। प्लेन स्क्रीन अवेलेबल है? डू वी हैव प्लेन स्क्रीन? नो वी डोंट हैव प्लेन स्क्रीन, बट नो इश्यूज़, साइड में कर लेते हैं। ठीक है, देखो 672 का यूनिट डिजिट है 2। ठीक, आपने क्या करना है, इस यूनिट डिजिट का डबल लिखना है। क्या आया 4, और उसके बाद इस यूनिट डिजिट को यहाँ से गायब कर देना है। गायब कर दिया, और ये जो 4 आया था इसको यहाँ पे गिवन नंबर से माइनस कर देना है। कितना हो गया 63। ठीक, कितना हो गया 63। तो बच्चों क्या ये 63 7 से डिविजिबल है? तो आप बड़ा सा यस कहोगे, यस सर डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैजिक क्या किया कि 672 को डिवाइड करने के बजाय पूरा का पूरा हम लोगों ने इस शॉर्टकट से पता कर लिया। आओ अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 5341। यूनिट डिजिट 1 है, 1 का दुगना क्या होगा बच्चों 2। ठीक, अब यूनिट डिजिट यहाँ से गायब कर देंगे और यहाँ से ये जो 2 है इसको उठाएंगे और माइनस कर देंगे। नंबर क्या बन गया 532। माइनस करने के बाद तो 532 आ गया। अब क्या करेंगे
फिर से यूनिट डिजिट बचा क्या 2, इस बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से कितना बन जाएगा 4, और यहाँ से इस यूनिट डिजिट को गायब कर देंगे और माइनस करेंगे किसको, इस 4 से। तो 53 में से 4 माइनस के कितना है 49। अब आप ये बताओ कि क्या 49 ये 7 से डिविजिबल है, तो आप बिल्कुल खुशी से कहोगे यस सर डिविजिबल है, ठीक है ना। चलो ऑन द अदर हैंड क्या करना पड़ता, अगर आपको ये मेथड आज अभी जो मालूम चला वो नहीं मालूम होता तो आप कहते हैं सर 7 7 ज़ा 49 कैरी 4 4 7 6 ज़ा 42 और बस करते चले जाते हैं ऐसे लंबा लंबा डिवीजन, ठीक है। एक और नंबर है, वो नंबर क्या है, अच्छा 2 नंबर और है ना, नंबर है 1067 और 7305, ठीक है। और देखते हैं तो बच्चों 1067 में क्या है ना कि 1067 का यूनिट डिजिट 7 है, 7 को अपने किनारे रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया बना 14, फिर आपने 7 यहाँ से सॉरी 7 आपने यहाँ से हटा दिया, माइनस किया 14। जब आप 7 में से 106 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 92। अब बताओ क्या 92 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड नहीं होता। आप बड़ा सा 9 लगा दोगे, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है और बड़ा सा 9 अगर आप लगा चुके हो तो बिना डिवाइड किया पता कर लिए कि गिवन नंबर जो था 1067 वो डिविजिबल नहीं है। सेम प्रोसीजर है बच्चों 7305 में, सेम प्रोसीजर है बच्चों 7305 में। इसको घर पे ट्राई करना, आपने वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देख लो। जो लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सामने आ रहा है, जो लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि इसके बाद तो फिर समरी ही है, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 का, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 का जो रूल है वो देखो, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of its digit at odd places and the sum of its digit at even places is either 0 or a number divisible by 11। इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे समझो कि एक नंबर मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है, 2 7 6 3 5, ठीक है। सो टेल मी वन थिंग, ये 5 हटा दो, 5 की जगह आप इसको लिख दो 9, ठीक है। टेल मी वन थिंग कि अगर आप डिजिट्स को काउंट करो तो कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स का नंबर है बच्चों, ये 5 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, मतलब वंस टेंस यूनिट, वंस टेंस 100,000 10,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि पहला डिजिट क्या लिखा है नंबर में। तो क्या जैसे होता है ना पिन, पासवर्ड, मोबाइल पासवर्ड, ATM पिन, तो आपके ATM पिन का फर्स्ट डिजिट क्या है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है। या आपके मोबाइल के पासवर्ड का पहला पिन, पहला डिजिट क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो उसी तरीके से इस गिवन नंबर का पहला डिजिट क्या है, आप क्या कहोगे सर पहला डिजिट 2 है, पहला डिजिट क्या है 2, सो दिस 2 इज फर्स्ट डिजिट। अच्छा, सेकंड डिजिट क्या है 7 है, तो ये सेकंड क्या है, 7 क्या है सेकंड डिजिट है। 6 क्या है थर्ड डिजिट है। 3 क्या है फोर्थ डिजिट है। 9 क्या है फिफ्थ डिजिट है। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई कि जो गिवन नंबर है 27639, इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 2, तो यानी पहला डिजिट 2 है तो उसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। दूसरा डिजिट 7 है तो इसलिए क्योंकि वो दूसरा डिजिट है इसलिए मैंने 2 लिख दिया। 6 क्योंकि तीसरा डिजिट है इसलिए मैंने नीचे 3 लिख दिया। 3 हमारा चौथा डिजिट यानी फोर्थ डिजिट है इसलिए मैंने नीचे 4 लिख दिया। 9 हमारा पाँचवा डिजिट है, सो दैट्स वाई वी रोट 5 नीचे लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, अब कुछ देर के लिए आप
मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसमें जो नंबर है, या ये नंबर छोड़ दो, नॉर्मल कॉमन सेंस में आपको क्या इवन नंबर और ऑड नंबर की नॉलेज है? आप कहोगे यस ऑफ कोर्स सर नॉलेज है। तो ऑड नंबर या इवन नंबर क्या होता है? ऑड नंबर या इवन नंबर वो होता है जिसके, पहले हम ऑड की बात करते हैं या इवन की पहले बात करते हैं, ठीक है। जिस नंबर के एंड में 0 2 4 6 या 8 आ रहा है वो नंबर क्या है? इवन नंबर है। और जिसके एंड में 1 3 5 7 9 आ रहा है वो क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहा जाए कि 3 क्या है तो कहोगे ऑड नंबर, 7 क्या है तो ऑड नंबर, 10 क्या है? इवन नंबर, 8 क्या है? इवन नंबर, 4 क्या है? इवन नंबर। सो जैसा नंबर होता है आप उसको नंबर की जगह पे प्लेस कह लो, ठीक है ना, नंबर की जगह पे प्लेस कह लो। तो जो 2 7 6 3 9 में जो पहला नंबर 2 है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी ऑड नंबर की जगह पे है। 1 क्या है? ऑड नंबर है ना। सो 2 इन द गिवन नंबर इज एट ऑड नंबर प्लेस। 7 जो लिखा हुआ है क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है, और सेकंड क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, तो वो क्या हो गया? जो 7 है वो क्या हो गया? वो हो गया इवन नंबर प्लेस पे हो गया। जो नेक्स्ट है 6 हमारा थर्ड डिजिट पे है, थर्ड प्लेस पे है, और थर्ड क्या होता है? 3 क्या होता है? ऑड नंबर। तो ऐसे पता चला कि अगर आपसे पूछें कि ऑड डिजिट्स क्या क्या है, ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पे क्या क्या है, तो कहोगे सर ऑड प्लेसेस पे 2 लिखा है, 6 लिखा है और 9 लिखा है, क्योंकि 1 3 और 5 लिखा है। अच्छा मैं पूछूँ, अच्छा बच्चों इवन प्लेसेस पे क्या लिखा है? तो आप क्या कहोगे कि सर इवन पे तो 7 लिखा है, क्योंकि ये देखो 2 है और ये 4 इवन नंबर है, तो 7 लिखा है और 3 लिखा है, 7 लिखा है और 3 लिखा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको 7 और 3 दोनों मालूम चल गया। ऑड प्लेसेस पे क्या है? 2 6 9। इवन प्लेसेस पे क्या है? 7 3। मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पॉज करके अराउंड 5 मिनट बिफोर जाओ और इस चीज़ को फिर से तुरंत समझो, जो मैंने अभी समझाया उसको फिर से तुरंत समझो। जिसको आप एक बार 2 बार रिवाइंड करके समझ लोगे ना, तो ये बारे में तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें पता करना है कि 8 6 3 4 7 8 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं कि ये नंबर है 8 6 3 4 7 8। ऑड प्लेसेस पे क्या क्या लिखा है बच्चों, ज़रा सा मुझे बताओ। ऑड प्लेसेस पे क्या क्या लिखा है बच्चों, ज़रा सा मुझे बताओ। क्योंकि सर ऑड पे 8 है, जोड़ते चलना सबको, 6 है, नहीं 6 नहीं है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। ऑड पे 8 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 7 है ना। 8 3 और 7 है, जिसका एडिशन कितना होता है? 18 होता है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ इवन पे क्या है, तो आप कहोगे सर इवन पे तो 6 है प्लस 4 है प्लस 8 है, 6 है प्लस 4 है प्लस 8 है, तो 6 प्लस 4 प्लस 8 कितना होता है? 18 होता है। तो ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं जब हमने उनको ऐड किया तो आंसर आया 18। इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं जब हमने इनको ऐड किया तो आंसर आया 18, ठीक। और रूल यही कहता है कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यानी इवन प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ो और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ करके दोनों में सब्ट्रैक्शन कर दो। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कायदे से, इवन डिजिट को ऐड करो, इवन प्लेसेस को ऐड करो और ऑड प्लेसेस को ऐड करो, और दोनों का जो डिफरेंस है माइनस करो।
माइनस करने के बाद अगर आंसर में 0 आ गया, अगर आंसर में 0 आ गया या 11 आ गया या कोई ऐसा नंबर आ गया जो 11 का विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, तो ये कहते हैं कि गिवन नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो बच्चों, आई अंडरस्टैंड कि अभी थोड़ा समझने में टीडीएस थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट मेरी बात आज ही सुन लो और हमेशा याद रखना, आज अगर इसे अच्छे से समझ लिए तो ट्रस्ट मी ये इससे आसान कुछ होता ही नहीं है 11 के सिवा, 11 के डिजिबिलिटी चेक के सिवा। मतलब वो तो 10 तो देखो कुछ नहीं है, 10 में तो 0 0 खाली देखना रहता है। उसके अलावा 11 बहुत इजी होता है। अगर एक बार आप ऐसा करना सीख गए तो आप डिवीजन कभी करना ही नहीं चाहोगे, आप केवल इस प्रोसेस से करना चाहोगे, ठीक है। तो जैसे सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस को जोड़ा गया तो 8 + 4 + 6 18 आया, और सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस को जोड़ा गया तो 7 + 3 + 8 आया और ये बन गया 18। और जब हमने ऑड इवन को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 0। और क्वेश्चन में बोला भी या तो 0 होना चाहिए या कोई ऐसा नंबर जो कि 11 का डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द गिवन नंबर इज 483278, 483278। इसके ऑड प्लेसेस को हम लोगों ने देखा तो देखो 8 + 7। अच्छा एक देखो उसमें है थोड़ा सा प्रॉब्लम, पता है प्रॉब्लम क्या है? बोलो, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो क्या है, जैसे नंबर लिखा हुआ है 8 6 3 4 7 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पूछूं कि ऑड प्लेसेस पे क्या होगा, तो कहोगे सर ऑड प्लेस पे 8 है, 3 है, 7 है। अच्छा पूछो इवन प्लेसेस पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर इवन प्लेसेस पे, आप कहोगे सर इवन प्लेसेस पे 6 होगा, 4 होगा और 8 होगा, है ना। बोलिए ये कब होगा बच्चों? जब हम लोग काउंटिंग लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी तक सिखाया है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर यही काउंटिंग लेफ़्ट टू राइट ना होके, अगर यही काउंटिंग लेफ़्ट टू राइट ना होके, अगर ये काउंटिंग राइट टू लेफ़्ट हो जाए, ठीक, तो मैं कहूँ ऑड प्लेसेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर ऑड प्लेस 8 4 और 6 है, ठीक। मैं पूछूँ इवन पे क्या है, तो आप कहोगे सर इवन पे तो 8 3 और 7 है। तो एक बात समझना, ध्यान रखना और हमेशा याद रखना कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग करो, चाहे आप राइट टू लेफ़्ट काउंटिंग करो, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे देखो काउंटिंग राइट टू लेफ़्ट कर रहा है। हम कहते हैं इस नंबर का अगर ऑड प्लेस मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, 8 4 और 6 होगा, 8 4 और 6 ऑड प्लेस अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो ये जो पार्ट है ये राइट टू लेफ़्ट गया है, कोई दिक्कत नहीं, राइट टू लेफ़्ट जाओ कोई इशू नहीं है, और लेफ़्ट टू राइट जाओ तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और देखो अब ऑड प्लेसेस यहाँ पता करना है, तो एक बच्चा राइट से भी लेफ्ट समझ लो कैसे होता है। ऑड में पहले क्या है 8 फिर 7 फिर 3 फिर 4, 8 + 7 + 3 + 4 कितना हो गया 22। फिर इवन प्लेसेस पे क्या है 1 + 2 + 8, 1 + 2 + 8, ठीक, इक्वल टू 11 हो गया। फिर दोनों का जब डिफरेंस करेंगे इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का, तो 22 - 11 यानी 11 आ जाएगा। और 11 क्या है, डिविजिबल है, और अगर 11 डिविजिबल है 11 से, तो नेचुरल सी बात है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से, ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से
डिविजिबल होगा। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये वाला एग्जाम्पल, एंड इसको आपको अपने घर पे ट्राई करना है, नहीं आएगा तो पूछना है। और ये जो चार्ट है बच्चों, ये आपको बनाना है अपनी फेयर कॉपी में, और ये मैं इसी तरह सुंदर सा चार्ट देखना चाहता हूँ आपकी फेयर कॉपी में। मेरे को इसके फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये आज का बहुत ज़्यादा हो गया। आई अंडरस्टैंड कि आज का लेक्चर 40 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। बस आप होमवर्क फटाफट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर ओवर करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। होमवर्क जो आज का है बच्चों 5B एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक काम करो, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है ना। ये पूरा एक्सरसाइज ही होमवर्क है तुम्हारा, पूरा एक्सरसाइज ही होमवर्क है। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे समझ में तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दूंगा, या फिर वीडियो सॉल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। दिस कंप्लीट एक्सरसाइज 5B इज़ योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।